evening friends, welcome back again. So after a long time I am going to post a video which many of you had requested as far as the Indian history is concerned for the UPSC Civil Services examination. As in the earlier videos we had discussed how to approach the history from the perspective of the prelims which was conducted on October 4th, 2020. So after these videos the requests have come to me for posing some kind of a guidance for the purpose of cracking the main examination. So as everyone is coming out of these corona times, gradually the things are coming back to the normal, and definitely thousands of aspirants, they are going to write the main examination which is going to be conducted in January 2021, for which the schedule or a date sheet has already come out. And those who are going to appear next year, both for prelims and mains, for them also this video will be very helpful. So focus of this video is not about taking any class as such, but rather I am going to discuss one sample question regarding the history, and especially the sub part or module of the history, that is art and culture. A very crucial question or a crucial topic, and most of the candidates, they are not unable to decipher the difference between that art and culture and history. So by taking this sample question from the main examination 2017, as we can see here, I am going to discuss that how we have to write the answer, because as everyone is aware that mains is not only about the knowledge. Main examination is not only the test of knowledge, but it is also the test of your writing skills. So I can say that more than the knowledge, it is about your writing and your writing skills, which is going to give you a success as far as the civil service examination is concerned. And since we follow a comprehensive strategy for any subject, for both pre and mains, and which is carried forward in an interview also, so same we have to do here also. So already the content or knowledge part we had covered, or every candidate or aspirant covers during his preparation for the prelims itself. So for the main examination, what is required? We require refining our knowledge or content, so that refining is reflected in your answers, and then you are able to get a success through the marks. So you can see here the question which I have posted here belonging to 2017 mains. The question is of 10 marks, and in this question the word limit normally which has been said by UPSC is 100 to 150. So why 100 to 150? UPSC will give only one aspect of the word limit, that is 150 words. But the point is that answer writing is an art, and being an art, it is very important to know that plus or minus the given number of words by the UPSC is always acceptable. Normally plus 50 or minus 50 words is definitely acceptable. So 100 to 150 words should be the range as far as your answer for the 10 marks is concerned. So this basic understanding we should keep in mind. Secondly, the question has been asked for 10 marks. The same question can be asked for 20 marks also. The same question can be asked for 5 marks also. And accordingly, we have to increase or reduce our answer. And this is what we call about answer writing as an art. The question itself is asking about the art. Okay. So here the question is not only asking about the art, but what we have to keep in mind, the answers which we are going to write for any subject or any subtopic in a main examination, that is an art. And that art and skill is going to get you through the UPSC, your dream career. So without wasting much of the time, I will directly come to the question. So as I have mentioned that the sample question belongs to mains 2017, and I am discussing the history, and the module is art and culture. So question we can see here. The question is asking that how far do you justify the view that the level of excellence of the Gupta numismatic art, the Gupta numismatic art we have to keep in mind, is absent in Latin times. So here you can easily see that I have gone for some boxes. I have highlighted some words. So in this approach of the
I am going to discuss, I have mentioned the first aspect that before writing an answer, you should have a kind of blueprint or framework of the answer in your mind. Suppose you assume that you are sitting in an examination hall and you are going to attempt this question. So this blueprint or mind approach or framework should be in your mind. Okay. So first aspect of that approach or framework is you have to identify the keywords. So here keywords already I have identified for you. You can see here that how far, the word how far itself gives a kind of indication or a clue that the examiner wants from you that you have to go for a balanced answer. Right? You should not go for any one particular stand, or you should not devote much of the words in writing one aspect of the answer. The focus should be on balanced one. Okay? And how it should be balanced? The question is saying that how far do you justify the view that the level of excellence of the Gupta numismatic art is absent in latter times. That means what we have to do, that we have to mention about the background of the Gupta numismatic art. Numismatic means what? Numismatic in historical terms, just to understand for a common candidate or aspirant of the UPSC, is a study of coins. Okay? Study of coins is called as a numismatic in a historical language. So Guptas were very famous for their coinage, and they did not issue the coin only for the monetary or economic purpose, but the very coin itself was an art. So the different aspects of the art that we have to mention in the answer, and then we also have to justify, or we have to give our opinion that how this aspect of the art which are found on the coins of the Guptas, they are absent in latter times. तो what it means, इसका मतलब क्या होता है कि अगर गुप्ता न्यूमिस्मेटिक पार्ट के कुछ जो आर्ट के एस्पेक्ट्स है वो अगर लेटर टाइम्स में हमें नहीं मिलते हैं, या लेटर टाइम्स में अगर मिलते हैं तो भी बहुत कम लेवल पे मिलते हैं, या उनका जो एस्थेटिक्स सेंस है, उनका जो फिनिशिंग है वो गुप्ता पे कंपैरिजन में नहीं है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि गुप्ता के न्यूमिस्मेटिक आर्ट पे या गुप्ता के कॉइन्स के जो फीचर्स है वो हमें पहले लिखने पड़ेंगे. वो फीचर्स जब हम लिखेंगे तो ऑब्वियसली हम बाद में लिख सकते हैं कि जो लेटर कॉइनेज आया था जिसका मैंने मेंशन दिया भी है, तो उस कॉइनेज में वो फीचर्स एब्सेंट कैसे थे. सो इन दैट वे वी हैव टू जस्टिफाई आवर आंसर. एंड व्हेन द क्वेश्चन इज सेइंग हाउ फार डू यू जस्टिफाई, that means question is asking about your opinion, and your opinion doesn't mean it should be your personal opinion. Whatever the professional aspects the historians have brought while discussing this particular topic, that aspect only we have to write as far as the answer is concerned, right? So that we have to be very clear. और जब हम बोलते हैं कि यूपीएससी अपना एक ओपिनियन मांग रही है, तो इसका मतलब जैसे मैंने बताया, यूपीएससी खाली आपका नॉलेज चेक नहीं कर रही है, यूपीएससी आपकी पर्सनालिटी भी टेस्ट कर रही है कि आप बायस हो या नहीं, आप किसी इश्यू को जस्टिफाई कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, यह भी यूपीएससी जानना चाहती है. तो यही चीज हमें इसमें देखनी पड़ेगी एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न्ड. तो यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि जो पहला एस्पेक्ट आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स, तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं. हाउ फार, तो ये पहला का नाम है. दूसरा है जस्टिफाई, तीसरा है लेवल ऑफ एक्सीलेंस, उसके बाद है न्यूमिस्मेटिक आर्ट एंड अल्टीमेटली एब्सेंट. तो हमें तुरंत पता चलेगा कि हमें किस किस एरियाज में फोकस करना है और उसी हिसाब से हमारा आंसर रेडी हो जाएगा. ओके, तो कीवर्ड्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं. तो उसके बाद क्या है कि गुप्ता के न्यूमिस्मेटिक आर्ट को जस्टिफाई करने के लिए उसके पहले हमें देखना पड़ेगा कि गुप्ता के न्यूमिस्मेटिक आर्ट्स का इमर्जेंस कहां से हुआ था. तो यहाँ पे वो पॉइंट हमें आना चाहिए, एंड दैट विल एक्ट एज ए इंट्रोडक्शन. तो जो बैकग्राउंड होता है कि गुप्ता न्यूमिस्मेटिक आर्ट या कॉइनेज कैसे आ गया, उसका बैकग्राउंड हमें 20 to 25 वर्ड्स में लिखना है. इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया भी है कि टोटल अगर हम आंसर 100 या 150 वर्ड्स में लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें ये देखना है कि हमारा इंट्रोडक्शन 20 से 25 वर्ड्स का होना चाहिए, जिसमें क्या आना चाहिए,
ब्रीफ हाईलाइट ऑफ द बैकग्राउंड एज फार एज द गुप्ता कॉइनेज इज कंसर्न। मतलब गुप्ता कॉइनेज जो आया वो कॉइनेज गुप्ता आने से पहले जो लोग थे उनके कॉइन्स के थ्रू ही आया है। गुप्ता से पहले जो थे एरा इन इंडियन हिस्ट्री उसको पोस्ट मौर्यन एज कहते हैं, जिसमें बहुत सारे फॉरेन डायनेस्टीज इंडिया में आ चुकी थी, जिसमें ग्रीक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडो ग्रीक जो फॉरेनर थे जो इंडिया में आए थे उन्होंने इंडिया में कॉइन्स इश्यू किए थे पहली बार, जो कॉइन्स हमें मिलते हैं। तो उस कॉइनेज से गुप्ता कॉइनेज इन्फ्लुएंस हुआ था, और ग्रीक्स का जो आर्ट था कॉइन्स के ऊपर उसी आर्ट्स के कुछ फीचर्स हमें गुप्ता के कॉइनेज में मिलते हैं। तो वो ब्रीफली हमें यहाँ पे मेंशन करना है इस सेक्शन में बैकग्राउंड में है, और उसके लिए हमें 20 से 25 वर्ष देने हैं, नॉट मोर देन दैट। नाउ इफ दिस इज क्लियर देन वी हैव टू कम टू द मेन बॉडी ऑफ द आंसर। तो मेन बॉडी में क्या होगा कि हमें गुप्ता के जो न्यूमिस्मेटिक या कॉइनेज आर्ट है उसके मेन फीचर्स लिखने हैं, जिसके मैंने हाइलाइट्स दिए हैं। तो पहले हमें फीचर्स में लिखना है कि गुप्तास के जो कॉइन्स थे वो कैसे थे, कौन से टाइप्स के कॉइन्स थे। तो गुप्तास के शुरुआत के कॉइन्स सिल्वर कॉइन्स थे। गुप्तास के बाद के जो कॉइन्स आने लगे थे, जैसे गुप्तास के डिफरेंट रूलर्स थे। इनिशियली जो गुप्तास रूलर्स आए थे जिन्होंने गुप्ता एम्पायर फाउंड किया था, उनका नाम था श्रीगुप्ता, और उनका जो बेटा था घटोत्कच, उनके कॉइन्स सिल्वर के थे। देन गुप्तास का जो पहला ग्रेट एम्परर था उनका नाम था चंद्रगुप्ता फर्स्ट या चंद्रगुप्ता वन, तो उनके टाइम से गोल्ड कॉइन्स आना शुरू हो गया था। लेकिन चंद्रगुप्ता वन के जो बेटे थे समुद्रगुप्ता, जो ग्रेटेस्ट गुप्ता रूलर जाने जाते हैं, उनके कॉइन्स सबसे बेस्ट माने जाते हैं। उन्होंने जो गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे वो गोल्ड कॉइन्स प्योर 24 कैरेट्स के थे, ठीक है। और उसके बाद समुद्रगुप्ता के जो बेटे थे उनका नाम चंद्रगुप्ता सेकंड था, उनके कॉइन्स भी बहुत बढ़िया थे। चंद्रगुप्ता सेकंड के बेटे थे कुमारगुप्ता, उनके कॉइन भी बहुत ही बढ़िया थे, गोल्ड कॉइन्स थे। तो अभी क्या था कि समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकंड, कुमारगुप्ता, इनके टाइम में गोल्ड कॉइन्स ज्यादा थे और सिल्वर कॉइन्स बहुत ही कम थे। लेकिन समुद्रगुप्ता के जो बेटे थे उनका नाम था स्कंदगुप्ता, जो लास्ट ग्रेट गुप्ता एम्परर माने जाते थे। तो उनके टाइम में गुप्ता के कॉइनेज जो थे, गुप्ता के जो कॉइन्स थे उनका कॉइन्स डिक्लाइन होने लगा। उनके कॉइन्स में आपको गोल्ड कम दिखेगा, है। और स्कंदगुप्ता जो थे वो गुप्ता के लास्ट रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन इशू किया था। तो ये जो मैं ब्रीफ दे रहा हूं, तो इतना सारा डिटेल हमें नहीं बताना एक पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए। टाइप ऑफ कॉइन्स में हमने इतना ही बताना है, एक लाइन या 2 लाइन में, कि अर्ली गुप्ता रूलर्स के कॉइन्स सिल्वर के थे, जो ग्रेट गुप्ता रूलर्स थे उनके कॉइन्स गोल्ड के थे, और जो गोल्ड का क्वालिटी और कंटेंट था वो हर एक ग्रेट रूलर के हिसाब से बढ़ते ही जा रहा था। एंड फाइनली जो बाद में जब गुप्ता का डिक्लाइन शुरू होने लगा तो फिर गुप्ता के गोल्ड कॉइन की क्वालिटी डिक्लाइन होने लगी और सिल्वर का जो कंटेंट था वो भी डिक्लाइन होने लगा, राइट। तो जो गुप्ता की पावर थी, राइज एंड डिक्लाइन ऑफ द गुप्ता पावर, उसी हिसाब से हमें कॉइनेज में रिफ्लेक्शन मिलता है। तो यहाँ पे 1-2 लाइन से लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आर्ट के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग ओनली अबाउट द कॉइन्स, इट इज आस्किंग अबाउट द आर्ट ऑन द कॉइन। तो कॉइन बनाना इटसेल्फ इज एन आर्ट, है। उस टाइम जो कॉइन थे सिल्वर के थे, गोल्ड के भी थे और कॉपर के भी थे। और जैसे मैंने बताया जो सिल्वर का क्वालिटी था, कंटेंट था, गोल्ड का क्वालिटी और कंटेंट था बहुत ही ज्यादा था, है। बाद में जो डिक्लाइन होने लगा था, लेकिन ज्यादा अगर था तो उस कॉइन को जो बनाना, दैट इज अ मेटलर्जी, दैट इज अ पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्ट। तो कॉइन बनाना इटसेल्फ वाज एन आर्ट, मेकिंग द कॉइन्स इटसेल्फ वाज एन आर्ट, ये पॉइंट आना चाहिए। दूसरा, जो कॉइन्स थे उसके ऊपर इमेज, जैसे मैंने डिस्कस किया है गुप्ता के पहले ग्रेट रूलर चंद्रगुप्ता वन, तो चंद्रगुप्ता वन जो रूलर थे उनके कॉइन्स को बोला जाता है चंद्रगुप्ता कुमार देवी टाइप कॉइन्स, क्योंकि चंद्रगुप्ता वन और उनकी वाइफ कुमार देवी दोनों एक साथ रूल करते थे, हस्बैंड एंड वाइफ। और कॉइन पे फ्रंट जो है ऑब्वर्स साइड यू विल फाइंड द इमेज ऑफ किंग चंद्रगुप्ता, एंड ऑन द रिवर्स यू विल फाइंड द इमेज ऑफ द किंग the image of the empress कुमार देवी, ठीक है। सो तो ये पॉइंट में हमें मेंशन करना है एज फार एज देयर इमेजेस आर कंसर्न्ड, मतलब इमेजेस ऑफ द एम्परर एंड एम्प्रेस, दैट इज अ मेन फीचर एज फार एज द चंद्रगुप्ता कुमार देवी कॉइन्स आर कंसर्न्ड। सो दिस पॉइंट वी हैव टू कीप इन माइंड। देन उसके बाद जो समुद्रगुप्ता थे उनके कॉइन्स पे आपको मिलेगा इमेज ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, ठीक है। गॉडेस लक्ष्मी इटसेल्फ इज अ गॉडेस ऑफ वेल्थ एज फार एज द
इंडियन रिलीजियस बिलीफ आर कंसर्न, तो उनके कॉइन्स के ऊपर आपको गॉडेस लक्ष्मी के आपका इमेज मिलेगा। देन द वेरी समुद्रगुप्ता, जो खुद ग्रेट रूलर थे, ही हैज बीन शोन प्लेइंग अ वीणा और ल्यूट विच इज इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑन द गुप्ता आर्ट। तो ये फीचर भी यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद ये भी लिखना है द इमेज ऑफ गरुड़ा और ईगल विच इज अ व्हीकल ऑफ लॉर्ड विष्णु, बिकॉज गुप्ता रूलर्स यूज्ड टू बिलीव इन वैष्णविज्म। ओके, they basically converted the Bhagavatism, the worship of Bhagavad Gita and Lord Krishna into Lord Vishnu, and Guptas are the champions of Hinduism, so their religious thoughts and beliefs are visible as far as their coins are concerned। तो ये पॉइंट भी हमारा वहां पे आना चाहिए, बिकॉज पॉइंट वाइज हमें मार्क्स मिलेंगे, एंड 10 मार्क्स है 100 या 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है, तो हमें एनालिटिकल नहीं होना है, पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, तो इसलिए गरुड़ा विच इज अ माउंट और अ व्हीकल ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु गरुड़ पे बैठ के या ईगल पे बैठ के सवारी करते थे, ऐसा हम इंडियन रिलीजियस टीवी सीरियल्स में भी देखते हैं। तो वही गरुड़ा की इमेज इस पॉइंट पे मिलती है। तो ये सारे फीचर्स हमें लिखने हैं एज पर एज द गुप्ता फीचर्स ऑफ कंसेप्ट। तो इसके लिए आप 50 से 60 वर्ड्स डिवोट कर सकते हैं आउट ऑफ टोटल 100 और 150 वर्ड्स। ठीक है, देन आपको सेकंड हाफ ऑफ द आंसर में आना है कि गुप्ता कॉइनेज के जो फीचर्स थे आर्ट के, वो बाद के जो कॉइन्स थे उसके ऊपर कैसे नहीं थे वो बताना है। तो बाद के कॉइनेज में क्या आता है, गुप्ता के बाद जो इंडिया के एम्परर थे उनका नाम था एम्परर हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन उनको बोलते हैं, एंड वो इंडिया के लास्ट ग्रेट एम्परर माने जाते हैं एज फार एज एंशिएंट इंडिया इज कंसर्न। हर्षवर्धन के बाद लगभग एंशिएंट इंडिया खत्म हो जाएगा, उसके बाद अरब का इन्वेजन हो जाएगा, एंड देन वी कैन से फॉरेन इन्वेजन विद अ न्यू रिलीजियस फोर्स, जिसको इस्लामिक फोर्स बोलते हैं। अरब, गजनी, टर्क्स, इनका आना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह से हर्षवर्धन इज द लास्ट एम्परर। तो उनके कॉइनेज और गुप्ता कॉइनेज में बहुत ज्यादा फर्क है। हर्षवर्धन ग्रेट एम्परर थे, लेकिन गुप्ता के जितने कॉइनेज हाई प्रोफाइल थे उतने हाई प्रोफाइल कॉइन हर्षवर्धन जी के नहीं थे। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। फिर उसी टाइम हर्षवर्धन जी के बाद हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में धीरे धीरे इन्वेजन शुरू हुए थे, लेकिन साउथ इंडिया में अभी भी इंडियन डायनेस्टीज थी, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में चौलास थे। चौलास ने एक बड़ा एम्पायर बनाया था। राजा चौला और उनके बेटे राजेंद्र चौला बहुत ही ज्यादा फेमस रूलर थे, जिनके टाइम्स में चौला एम्पायर बहुत बड़ा हो गया था, ऑलमोस्ट साउथ इंडिया कवर कर लिया था। और साउथ इंडिया नहीं, वो श्रीलंका में भी था, मालदीव में भी था, मालदीव आइलैंड्स, और सीधा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी था। तो चौलास के कॉइन्स भी अच्छे हैं, बट गुप्ता पे कंपैरिजन में चौलास के कॉइन्स भी कम पड़ जाते हैं। गुप्ता के जो कॉइनेज के आर्ट एंड न्यूमिसमेटिक्स के फीचर्स है वो चौला कॉइन्स में आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। जो वैरायटी है, जो क्वालिटी है, जो डिजाइन्स है, शेप्स है, वो एब्सेंट है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट मेंशन करना है। चौलास के बाद फिर विजयनगरा आएगा, क्योंकि विजयनगरा एम्पायर जो था अराउंड 15 सेंचुरी में आ चुका था, 14-15 सेंचुरी में। तब पूरा नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत था, पूरे नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत था और इस्लामिक रूल आ चुका था। लेकिन साउथ इंडिया में अभी भी विजयनगरा एम्पायर था, लेकिन विजयनगरा एम्पायर भी पावरफुल होने के बावजूद विजयनगरा एम्पायर भी फेमस था गोल्ड कॉइन्स के लिए। तो गुप्ता के गोल्ड कॉइन और विजयनगर के गोल्ड कॉइन्स कंपेरेबल है, लेकिन कॉइनेज के ऊपर जो डाइवर्सिटी ऑफ आर्ट है वो विजयनगर में नहीं है। जो गुप्ता के कॉइन पे हमें मिलता है ईगल और गरुड़, जो लॉर्ड विष्णु का व्हीकल है, तो विजयनगर के कॉइन पे ये मिलता है। ओके, यू विल फाइंड अ गरुड़ और ईगल ऑन द विजयनगरा कॉइन्स, बट अदरवाइज द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द गुप्ता coinage art will not be found in Vijayanagara. So in that way you can write your answer. And finally, before conclusion, you have to mention about the medieval rulers or dynasties, that is Delhi Sultanate and Mughal period. तो जब दिल्ली सल्तनत आए थे, तो दिल्ली सल्तनत जिन्होंने एस्टेब्लिश किया था वो टर्क्स थे। तो टर्क्स अपने साथ जो कॉइन्स लेके आए थे वो कॉइन्स अरेबिया और सेंट्रल एशिया थे, और उनके कॉइन्स गोल्ड के नहीं थे। ठीक है, तो गुप्ता के साथ कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। उनके कॉइन्स मेनली सिल्वर एंड कॉपर के थे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा फेमस थे कॉपर कॉइन्स इशू करने के लिए, और उनके कॉइनेज का जो फोकस था वो इकोनॉमिक पर्पस के लिए ज्यादा था, आर्ट एंड कल्चरल पर्पस के लिए बहुत ही कम था। तो जो दिल्ली सल्तनत के कॉइन्स है उनके ऊपर आपको
प्योरली इस्लामिक डिजाइन्स, प्योरली अरेबिक कैलीग्राफी मिलती है। वहां पे कंपैरिजन आपको गुप्ता के आर्ट के हिसाब से थोड़ा कम ही मिलेगा। हालांकि एक नया डायमेंशन ऐड हो चुका था, ये बड़ा एग्जाम में लिख सकते हो, न्यू डायमेंशन और न्यू पर्सपेक्टिव फ्रॉम द रिलीजियस और कल्चरल एंगल हैड कम। तो रिलीजियस से ज्यादा कल्चरल वर्ड यूज करके ज्यादा अच्छा रहेगा। और मुगल पीरियड की बात करते हैं तो वही ट्रेडिशन कंटिन्यू हुई। तो गुप्ता एम्पायर जितना प्रॉस्परस था, गुप्ता एम्पायर से पहले मौर्यन एम्पायर था एंशियंट टाइम्स में, तो वैसे ही मेडिवल टाइम्स में मुगल एम्पायर भी बहुत ज्यादा पावरफुल था और प्रॉस्परस भी था। मुगल्स के पास भी गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं जिसको मोहर बोलते हैं, मोहर है मुगल गोल्ड कॉइन्स। बट फिर भी जो आर्ट एंड कल्चर की डायवर्सिटी है वो ज्यादा रही है। वही मुगल्स जिन्होंने ताजमहल बनाया, वही मुगल्स जिन्होंने हुमायूं टॉम बनाया था, लेकिन वो ताजमहल या हुमायूं टॉम आपको मुगल्स के कॉइन में नहीं मिलता। ठीक है, अगर यू विल फाइंड इस्लामिक कैलीग्राफी, कुरान के जो वर्सेस है, वही एक यूनिलैटरल जो आर्ट का पर्सपेक्टिव है वही एक आपको मिलता है। और अल्टीमेटली औरंगजेब जब आए थे तो उनके टाइम में तो उन्होंने आर्ट एंड कल्चर को ऑलमोस्ट डाइवर्ट ही कर दिया था, उनका ध्यान आर्ट एंड कल्चर में नहीं था, उनका फोकस कहीं और था। तो इसलिए वो डाइवर्सिटी आपको अल्टीमेटली मुगल के कॉइन्स में नहीं मिलने वाली थी। तो इस पर्सपेक्टिव से हमें वो 100 to 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है। तो ये जो लेटर पार्ट है जो कंपैरिजन होगा उसको भी 50 वर्ड्स पे हमें लिखना है एंड देन हमें फाइनली कंक्लूड करना है एक 2 to 3 लाइन्स। अगेन 20 या 25 वर्ड्स पे हमें कंक्लूजन लिखना है। जो आंसर हमने लिखा है उसकी ही समरी हमें फिर से लिखनी है एंड उस आंसर को कंक्लूड करना है। दैट कंसिडरिंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉइनेज वी कैन डेफिनेटली से हम ये बोल सकते हैं कि लेटर जो कॉइन्स थे गुप्तास के बाद के वो अलग अलग पर्सपेक्टिव से अच्छे थे, उन्होंने नए डायमेंशंस लाए थे, लेकिन जो क्वालिटी गुप्ता कॉइन्स की थी, चाहे वो कंटेंट हो सिल्वर गोल्ड या किसी और मेटल का, या आर्ट के जो पर्सपेक्टिव थे, डिजाइन थे, शेप्स थे, वो कंप्लीटली आपको नहीं मिलते हैं एज पर एज द लेटर कॉन्सेप्ट। ऐसे करके आपको कंक्लूड करना है और ऐसा आप आंसर लिखोगे तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस that you are going to get a maximum marks, and this will help you to crack the UPSC on a sure shot basis. So on this note, I will like to take your leave. Have a good day to all of you, and in these corona times, take care, be safe, be a responsible citizen because you are going to be a future bureaucrats. And once again, with a new video, I will come and give you the important insights so that you can crack UPSC and achieve your dream. Thank you very much.